Namaskar, all of you. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, today we are going to read our chapter. Okay, only reading and learn things such evaporation and condensation. Right? So, read with me and learn how to read. Okay, every words, every hard words, how to read. So concentrate. Okay. Put your finger which I am reading. Okay. Which line I am reading. So this is our chapter 5, solids, liquids and gases. Right. In this chapter we are going to learn about solids, liquids and gases. And second thing, change of form. Okay. So on page number 49, there is one activity. See, you know that water exists in different forms, right? Water exists in different forms. अलग-अलग forms में वो exist होता है. Identify 3 forms of water shown in the pictures given below. Write the name of each form in the space provided. See, there are many forms of water. We have to write down their name in the space provided, right? So first we can see ice here, right? तो ice है वो कौन से form में होता है? It is in solid form, so we have to write down solid here. Second, we can see liquid here, but it is boiled liquid, right? So we can see steam also. Right? So this is gas. So liquids and gas. Third one is liquid. So write down liquid here. Fourth one, we can see the water, sun. तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे इवापरेशन हो रहा है, राइट? तो लिक्विड एंड वी कैन सी गैस. ओके. नाउ डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. Some exist as solids, some as liquids, and some as gases. Let us learn more about solids, liquids, and gases. Okay. सारे फॉर्म्स है वो अलग अलग जो फॉर्म में है वो होते हैं. सारे थिंग्स हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में. तो लेट्स लर्न मोर अबाउट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. Okay, so turn the page number 5050, see solids. So things such as pen, pencil and eraser have a fixed shape and size. They do not flow and cannot be poured into containers. Solid किसे बोलते हैं? Solid ऐसी चीज़ है, they have फिक्स्ड शेप. उनका शेप है वो फिक्स होता है ना? उसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे. और वो पोर नहीं, मतलब उनको किसी में पिरोया नहीं जा सकता, राइट? पूरा नहीं जाता कंटेनर में, तो उसे हम सॉलिड्स बोलेंगे. और अगर हम कंटेनर में डालें भी तो भी उनका जो वॉल्यूम है, उनकी जो साइज़ है वो चेंज नहीं होएगी. ओके. सो this is solids. Such things are called solids. When solids are ground to a powder, they can flow through holes of containers when sprinkled. अगर हम solids को पाउडर फॉर्म में डालें, अगर उनको हम पाउडर में कन्वर्ट करें तो हम कंटेनर में भर के उनको स्प्रिंकल कर सकते हैं, राइट? सो उसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? एग्जाम्पल लाइक टेल्कम पाउडर, सॉल्ट एंड पेपर. सैंड ऑल्सो मूव्स इनसाइड एन आवर-ग्लास. आई शो यू गाइस आवर-ग्लास, नो? तो उसमें से वो क्या कर सकती है? मूव कर सकती है. टेल्कम पाउडर, सॉल्ट, पेपर, वी कैन स्प्रिंकल, राइट? सो दीज आर द सॉलिड which ground to a powder form.
Okay, now see liquids. Things such as water, oil and milk do not have fixed shape. They flow easily and take the shape of container they are poured in. Such things are called liquids. What are liquids? Liquids क्या है? तो उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता. उनको वाटर बॉटल में डालो तो वो वाटर बॉटल जैसा हो जाएगा, कटोरी में डालो तो कटोरी जितना हो जाएगा, राइट, उनका शेप. सो उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, बट दे टेक shape of container, okay, which they are poured in. Such things are called liquids. Now see differences between solids and liquids. So solids, first difference is solids have a fixed or definite shape, right? But liquids do not have any definite shape. They take the shape of the container. अभी मैंने बोला आपको कि सॉलिड है, उनका जो शेप है वो फिक्स रहता है. टेबल आज है तो आज वो स्क्वायर है, कल ट्रायंगल हो जाएगा, ऐसा होगा? नो, दे हैव देयर फिक्स्ड शेप. बट लिक्विड डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप. उनका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता. अभी पानी है, हमने कटोरी में डाला तो कटोरी जितना हो गया. अभी हमने तपेली में डाला तो वो पॉट जैसा दिखने लगेगा, राइट. तो उनका जो शेप है वो चेंज रहता है. वो किसका शेप ले लेते हैं? कंटेनर का. सेकेंड डिफरेंस इज सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. सॉलिड है वो फ्लो नहीं करते, बट लिक्विड्स फ्लो इजीली. लिक्विड है वो फ्लो करते हैं, राइट. तो दीज आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. नाउ सी गैसेस. So a thing that has no shape or size of its own is called a gas. गैस है, उनका ना तो कोई शेप होता है ना कोई साइज होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गैस, राइट. वाटर वेपर इज अ गैस. मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन. वाटर वेपर यानी वाटर की जो भाप है वो क्या है? गैस है, राइट. बट मोस्ट गैसेस है वी कैन नॉट सी, राइट. पानी में हवा में बहुत सारे गैसेस है, वी कैन नॉट सी देम. गैसेस आर ऑल अराउंड अस. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, राइट. गैसेस आर ऑल अराउंड अस. हमारी आजू बाजू इतनी सारी हवा है, हवा में ही गैसेस मिक्स है. सो बहुत सारे गैसेस है जो हमारी आजू बाजू है, राइट. वी ब्रीथ इन एयर दैट कंटेन्स अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन. हमारी ब्रीथ में हम जो एयर लेते हैं उसमें कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है, राइट. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. दिस इज़ ट्रू. सारी जो लिविंग थिंग्स है उनको ऑक्सीजन चाहिए फॉर ब्रीथिंग, राइट. लाइक लिक्विड्स, गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो. जैसे लिक्विड फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करते हैं. यू गाइस कैन सी, हवा एक जगह नहीं रुकती, एयर एक जगह नहीं रुकती है ना, वो फ्लो करती रहती है. सो एयर कैन ऑल्सो फ्लो. See, we breathe in air which is a mixture of many gases, right? Now, page number 51. Let's reminder activity we have already done. Now see, change of form. So, water freezes to from ice. Water freezes to from ice. यानी पानी है वो फ्रीज होके क्या बनेगा? क्या फॉर्म बनेगा? इट्स आइस, है ना, वो आइस बनेगा. हम पानी है, हम सब करते हैं, पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो फ्रीज होके क्या बन जाता है? इट बिकेम आइस, राइट. आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर. अगर आइस को हमने मेल्ट करा, पिघाला, तो क्या बनेगा? वाटर.
When water is heated longer, small bubbles start forming. When water is heated longer, यानी वाटर को हम अगर लंबे टाइम तक क्या करें, उबालते रहे, तो उसमें क्या होगा, स्मॉल बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग, उसमें से स्मॉल बबल्स निकलेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग. इसे हम बॉइलिंग बोलेंगे. लंबे टाइम तक पानी को गर्म करना, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग, राइट. स्टीम rises up from boiling water. स्टीम है वो जो उबलता हुआ पानी है उससे राइज करती है, यहाँ वहाँ से निकलती है, राइट. स्टीम इज अ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस. जो स्टीम है वो भी एक टाइप का वाटर ही है ना, जो वाटर ही है जो गैस से हमें मिलता है, जिसे हम गैस बोलते हैं. The process by which water changes into steam on heating is called evaporation. What is evaporation? The process by which water changes into steam on heating. देखो ये heating हो रही है, is called evaporation. इसे evaporation बोलेंगे, है ना. हम पानी को गरम करें, है ना, बॉईल करें और वो किस में चेंज हो जाए, स्टीम में चेंज हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड इवापोरेशन. ओके. इफ़ यू होल्ड अ लीड ऑन अ प्लेट अबाव बॉइलिंग वाटर, द स्टीम टच द लीड. इट्स ट्रू. आप ऐसे बॉइलिंग, ये जो है कढ़ाई, इसके ऊपर ऐसे ढक्कन रखेंगे तो ये जो स्टीम है इससे मिलेगी. तो यहाँ पे क्या होगा, सी द स्टीम then cools down and changes into tiny water droplets. यहाँ तक आते आते स्टीम है वो ठंडी हो जाएगी और वो क्या कौन सा फॉर्म ले लेगी, चेंजेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. वो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे, है ना. दिस इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन. इसे कॉन्डेंसेशन बोलते हैं. सो व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस बाय व्हिच water changes into steam on heating is called evaporation. And the process, the steam cools down and changes into tiny water droplet, it is called condensation. See, ये जो steam है वो ठंडी होके droplets में convert हुई, this is called condensation. Steam condenses टू फॉर्म वाटर. ये स्टीम है वो किस में कंडेंसेट होती है, किस में फॉर्म होती है, वाटर में, राइट. स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर. द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैन चेंज फॉर्म वन फ्रॉम टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग. हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग. सी, जैसे आइस को हमने अगर हीट कर दिया तो वो पानी बन गया, राइट. अब पानी को हमने और ज़्यादा हीट कर दिया तो वो स्टीम बन गया. अब स्टीम को हमने ठंडा करा तो वो वाटर बन गया. वाटर को हमने और ठंडा करा तो वो आइस बन गया. सो दिस इज़ अ प्रोसेस गाइस. अब मैंने जो ये आपको इजी लैंग्वेज में बताया वही मैं साइंस की लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी. दैट इफ़ वी मेल्ट आइस वी गेट वाटर in liquid form, and if we boil water, that is called evaporation, है ना, will get steam in form of gas, right. अगर गैस को हमने ठंडा किया, कूल किया, उसे हम बोलेंगे condensation. That process called condensation will get water in liquid form. And if we cool that water, so we'll get ice. That process called freezing, right. So water, right. Sorry, change of forms of water, इसे हम forms of water का changes बोलेंगे, right. Now
turn the page number 52. The process by which a solid changes into a liquid on heating is called melting. मेल्टिंग को क्या बोलते हैं? हम सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसे हम मेल्टिंग बोलेंगे, राइट? The process by which liquid changes into gas on heating is called evaporation. हम अगर लिक्विड को बहुत ही गर्म करें, है ना, और वो कौन से फॉर्म में आ जाए? गैस के फॉर्म में, है ना, स्टीम के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? evaporation, right? The process by which a gas changes into a liquid on cooling is called condensation. गैस है, उनको हम ठंडा कर दे और लिक्विड फॉर्म में लाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? condensation, right? The process by which a liquid changes into solid on cooling is called freezing. ऐसी प्रोसेस जिससे हम लिक्विड को कूल करके सॉलिड बना दे तो उसे हम फ्रीजिंग बोलेंगे. सो दिस इज सो इजी. दिस एक्टिविटी आई ऑलरेडी given to you guys in homework, right? These are the keywords I also given to you in homework, but we'll read, right? What is solid, right? Read. A thing that has a definite shape and size is called a solid. What is liquid? A thing that takes the shape of its container is called a liquid. What is gas? A thing that has no shape or size of its own is called a gas. What is melting? The process by which solid changes into a liquid on heating is called melting. What is evaporation? The process by which a liquid changes into a gas on heating is called evaporation. What is condensation? The process by which a gas changes into liquid on cooling is called condensation. And what is freezing? The process by which a liquid changes into a solid on cooling is called freezing, right? So these keywords you have to learn, guys, okay? Now summary we have already discussed, but we'll read, okay? Water exists in 3 forms, right? Solid, liquid and gas. Second thing, solids have definite shape of their own, but liquids do not have any shape of their own. They take the shape of container and they flow easily. Now, gases do not have a shape or size of their own. They can flow easily. Oxygen and water vapor are 2 examples of gases, right? And last thing, the 3 forms of water can change from one form to another by heating or cooling. We can change the water forms by heating or cooling. हम वाटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. किस तरह से? बाय हीटिंग और कूलिंग. सो दिस इज अवर चैप्टर 5. रीड केयरफुली. इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी आस्क मी, है ना. मैंने बहुत बार आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन समझाया है. मैं आपको कंसेप्ट वीडियो भी सेंड करूँगी. यू विल लर्न इट, ओके. सो बाय बाय फॉर टुडे. Stay healthy, drink more water.